Hello friends, if you are preparing for Code 55 Labor Welfare and HRM, Code 08 Commerce, Code 17 Management, then get in touch with Human Peritus. Human Peritus is having vast past experience of more than 14 to 15 years in teaching these subjects. आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 के ऑब्जेक्टिव जानेंगे। हम ये जानेंगे कि ये एक्ट क्यों लाया गया था। So let me share my screen with you. So objectives of Contract Labor Act 1970 basically तीन वर्ड से रिफ्लेक्ट होते हैं. First is your abolition of contract labor system, then regulation of working conditions of contract labor, and the third one is prohibition of employment of contract labor. So basically abolition and regulation we can also see in the name of the Contract Labor Act itself. Okay, let's delve into these objectives of contract labor in some more detail. तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान प्लानिंग कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम. बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने ये बोला था कि लेट अस ascertain the extent of the problem of contract labor and also the progressive abolition of the system of contract labor. So basically उस टाइम पर ये डिसाइड किया गया था कि wherever practical and possible the government should abolish completely the system of contract labor. Why? Because contract labor, they are more vulnerable to the exploitation of employers and the capitalist class. So that is why it was suggested at that time that the system of contract labor should be completely abolished wherever possible and practicable. Okay. However, where this kind of abolition is not possible to the full extent, then in that case, the Planning Commission recommended the regulation of conditions of contract labor. So working conditions regulation was suggested by the Planning Commission in case it was not possible to totally abolish the system. Okay. And why there was need felt to regulate the working conditions of contract labor? क्योंकि employer कभी अपने आप से ये सब नहीं करेगा, तो एक लॉ की जरूरत थी which can intervene and which can basically ensure timely payment of wages to contract labor and also provision of essential facilities. So like Factories Act, the government thought that contract labor should also be ensured with the timely payment of wages, and also there should be provision of essential amenities from the employer or contractor side so as to ensure that the contract laborers are not exploited in the hands of either employer or contractor. Right? So abolition और रेगुलेशन ये दोनों जुड़े हुए हैं. या तो एबॉलिश कर दीजिए सिस्टम को या फिर उनकी वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट कर दीजिए, यानी कि उस पर नजर रखिए सो एज टू स्टॉप देयर एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, बट actually it is provided under section 10. Okay, so section 10 specifically talks about the prohibition objective of the Contract Labor Act, wherein section 10 provides power to the appropriate government. तो किसके पास पावर है प्रोहिबिशन लगाने की? appropriate government के पास. So appropriate government के पास by virtue of section 10 of the Contract Labor Regulation Act पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के वर्क को लेकर, प्रोसेस को लेकर या ऑपरेशन को लेकर
एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट कर सकती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एबॉलिशन और प्रोहिबिशन में फर्क है। एबॉलिशन का मतलब है कि हमने उस सिस्टम को इराडिकेट कर दिया, एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। प्रोहिबिशन का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आप उसको स्टॉप कर रहे हो। ठीक है, पहले से कहीं काम हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, बट बाय द ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नाउ दैट वर्क कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो इस तरह का प्रोहिबिटरी ऑर्डर, जहां पहले से कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम लिया जा रहा है लेकिन बाद में ऑर्डर इश्यू होने के कारण नाउ दैट वर्क विद द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज नॉट पॉसिबल। तो ये फर्क है प्रोहिबिशन और एबॉलिशन में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के वर्क को लेकर, प्रोसेस को लेकर, या उसके ऑपरेशन को लेकर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर सकती है इन सब केसेस में। So looking into the working conditions of the contract labor engaged in particular industrial establishment, or looking into the facilities which are being provided to the contract labor or benefits provided to the contract labor engaged in particular industrial establishment, and these factors which are mentioned on the slide, the appropriate government can issue prohibitory orders. तो ये और अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर है पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क। तो अगर एक ऐसा वर्क है विच कैन बी परफॉर्म्ड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर considerable number of days or for continuous period of time, in that case appropriate government employment of कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर प्रोहिबिशन लगा सकती है। क्यों? देखिए, इसके पीछे कारण सिंपल सा है कि ये सब जो फैक्टर्स है ना, वो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि ये सारे के सारे काम जो है वो रेगुलर वर्कमैन या फुल टाइम वर्कमैन के थ्रू होने चाहिए थे और ना कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू। क्योंकि ऐसे नेचर ऑफ वर्क जहां पर फुल टाइम या होल टाइम वर्कर्स एंगेज होने चाहिए थे लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर रही है कि जो काम फुल टाइम या रेगुलर वर्कमैन के थ्रू होना चाहिए था अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू करवा रही है, देन आप प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर दीजिए। तो बेसिक मकसद यहाँ पर यही है। तो कोई भी पेरिनियल नेचर वर्क है, कंटिन्यूअस नेचर वर्क है, तो दैट शुड बी बेसिकली परफॉर्म बाय रेगुलर वर्कमैन, नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर सकती है। सिमिलरली कोई भी ऐसा वर्क विच इज इंसिडेंटल एंड necessary to the industry, trade, business, manufacture or occupation of the industrial establishment, then that should be performed by engagement of regular workmen, not by engagement of contract labor. थर्ड फैक्टर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है टू इशू प्रोहिबिटरी ऑर्डर, वर्क विच कैन एम्प्लॉय कंसिडरेबल नंबर ऑफ होल टाइम वर्कमैन। तो ऐसा कोई भी काम जो कि होल टाइम वर्कमैन के थ्रू ही किया जाना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो वो काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केसेस दैट जहां पर सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स सेम काम या सिमिलर काम फुल टाइम वर्कर से ले रही है, होल टाइम वर्कर से ले रही है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है वही सेम काम, तो ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रोक सकती है दैट यू कैन नॉट एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सच वर्क। कि बाकी सब अगर फुल टाइम या रेगुलर वर्कमैन के थ्रू काम ले रहे हैं इस नेचर ऑफ वर्क में, देन यू कैन नॉट एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सच नेचर ऑफ।
तो इस तरह के फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर सकती है। ठीक है, तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एबॉलिश कर दीजिए वेयर एवर प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल, नहीं एबॉलिश कर सकते तो रेगुलेट कर दीजिए उनके वर्किंग कंडीशंस को, ताकि उनकी कंडीशंस अच्छी हो और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। और सेक्शन 10 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दे दी गई है कि लुकिंग इनटू द नेचर ऑफ द वर्क, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके तो आप प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू कर सकते हो फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर।